صرف ایک آخری کوشچن پوچھنا ہے 2-3 منٹ صرف. جی 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 سر یعنی آپ کا پرسپیکٹو ہے کہ گوڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا اور جو بھی چیز یعنی چل رہی ہے وہ ساری ایولیوشن کے تحت چل رہی ہے, ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایویڈنس ہمیں یہی بتا رہا. نہیں ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سر چلے دس از این ایویڈنس بیسڈ اسٹیٹمنٹ اور ہم آپ کے سامنے ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں. سر چلے ٹھیک ہے, میں فور دا سیک آف ایگریمنٹ میں آپ کے ساتھ ایگری کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ پھر یعنی جو سوشل انجسٹس ہے اور سارا یعنی کسی کو کچھ کم مل رہا ہے, کسی کو کچھ زیادہ مل رہا ہے, اس کا فیصلہ کہاں پہ ہوگا؟ یہ بہت ہی آسان سوال ہے. محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کسی نے کم محنت کی اس نے کم کمایا, کسی نے زیادہ محنت کی اس نے زیادہ بنایا. یہ بات نہیں وہ کر رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کلوجر نہیں ہو پاتا چند قضیوں کا, چند جھگڑوں کا. اس دنیا میں پورے طریقے سے انصاف نہیں ہو پاتا. کسی نے کوئی بہت بڑا کرائم کر دیا ہے, اس کے مطابق اس کو سزا نہیں مل پاتی, تو وہ جسٹس کلوجر نہیں ہو پاتا. اچھا اب therefore یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس دنیا میں جسٹس کلوجر نہیں ہو پا رہا, اس لیے کوئی اور دنیا ہونی چاہیے, کوئی اور میدان عمل لگنا چاہیے جس میں انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں. اس بات کو یاد رکھیے کہ بھیا یہ جو آرگیومنٹ کی فارم ہے, میں کئی بار اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں. اس کی فارم یہ ہے کہ چونکہ آپ چاہ رہے ہیں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. اس کی فارم یہ ہے کہ بیکاز آئی وانٹ دس ٹو ہیپن therefore دس ول ہیپن. یہی پرابلم ہے اس کے ساتھ کہ خواہش جو ہے, خواہش کی بنیاد پر جو آرگیومنٹ ہے وہ نان آرگیومنٹ ہے. یہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے. باتیں بہت لمبی ہو سکتی ہیں اس موضوع کے اوپر, لیکن بنیادی طور پر آرگیومنٹ کی فارم یہ ہے کہ چونکہ آپ چاہ رہے ہیں اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کیسے ہوگا. چلیے ٹھیک ہے, اگر چاہ بھی رہے ہیں ہمیں لگ بھی رہا ہے, تو پھر بھی یہ سوشل انجسٹس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ تو کوئی ریپ کرے گا اور وہ بچ جائے گا, اور کوئی معذور پیدا ہوا ویسے ہی مر جائے گا. اسی لیے پوری حتمی ہمیں پوری طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں ہی ان کو کیا کہتے ہیں ہم ریپ کی سزا دیں, تاکہ ریپ وقت کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے وقتوں میں کم سے کم ہو. ریپ تو وہ چیز ہے زنا بالجبر جس کے بارے میں قرآن خاموش ہے. اس کی تقریباً اس کی 6 وہ تو خالی زنا کی بات کرتا ہے. زنا بالجبر اور زنا بالرضا کے درمیان فرق کرنے سے جو قرآن ہے وہ قاصر رہا ہے اپنی اوور 6000 ورسز کے اندر. اپنی 6000 سے اوپر جو اس کی آیات ہیں اس میں زنا بالجبر اور زنا بالرضا کے درمیان فرق ہی نہیں کر پایا وہ. تو پھر اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سارا کچھ حدیث کے اندر آ تو گیا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن مکمل نہیں تھا. کہاں آیا حدیث میں زنا بالجبر جو ہے, مجھے بتائیں کہ کہاں پہ لکھا گیا کہ وہ گناہ ہے. دیکھیں زنا بالرضا کے نہیں, اس کو تو ابھی ہم اس بات کو پھر ہمیں ماننا پڑے گا. قرآن ان اینڈ آف اٹ سیلف جو ہے وہ نامکمل کتاب ہے اگر آپ حدیث کا سہارا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ حدیث کا سہارا لے چیزوں کی باتیں کرتے ہیں تو وہ all the more reason آپ خود ہی اس نتیجے پہ پہنچے کہ قرآن ایک نامکمل کتاب ہے, تو لہٰذا اس کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا وہ غلط ہے. تو قرآن میں ادھر سے غلط ثابت ہو جاتا ہے, اس میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی. قرآن سیلف کنٹین نہیں ہے. پھر تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ چاند پہ جا کے نماز کس ڈائریکشن میں پڑھنی ہے یہ بھی قرآن میں آنا چاہیے. یہ بھی قرآن میں آنا چاہیے کہ ایٹم ہم کیسے بنانا ہے. وہ تو پھر انلمیٹڈ کوسچن ہے. دیکھیں اس بات پہ میں آپ کو اس بات پہ جواب دے دوں کہ بہت سارے علماء لائن پہ سوچ رہے ہیں. بالکل صحیح. کنفیوز بہت سارے علماء یہ بات کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے نا وہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن تو راہ دکھانے کے لیے آیا تھا, تو اس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اگر آپ آنیسٹ انالیسس کریں گے نا تو آپ کو بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ اگر کسی کتاب کے لکھنے والے کو ایک بات نہیں پتا, پھر تو ود 100 probability وہ بات اس میں نہیں ہو سکتی. اچھا اگر وہ بات پتہ ہے لکھنے والے کو اور وہ اس میں نہیں ہے, تو پھر آپ کو توجیحات ڈھونڈنی پڑیں گی. اچھا یار یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ بات اس میں نہیں تھی, یہ اسے نہیں پتا تھا, یہ اس کا موضوع نہیں تھا, یہ شاید اس میں پراپر وقت نہیں تھا. بات آپ کو 100 قسم کے ہیلے بہانے کرنے پڑیں گے. لیکن اگر وہ بات لکھنے والے کو نہیں پتا تو ود 100% probability وہ بات اس کتاب میں نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ ایک بیجین انالیسس کر رہے ہیں جو کہ انفرنس کر رہا ہے کہ کس چیز کی ریشنل انالیسس کیا ہے, کس چیز کی probability زیادہ ہے کہ اس کے لکھنے والے کو پتہ نہیں تھا یا کسی بہت بڑی الٹی سیدھی مصلحت کے تحت یہ بات اس کتاب میں نہیں آئی اور وہ جانتا بھی تھا, تو زیادہ لاجیکل زیادہ ریشنل یہی ہے کہ آپ اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ یہ بات لکھنے والے کو پتہ ہی نہیں تھی.
तो सर अल्लाह ताला ने कौन सा अकेला कुरान उतारा है, उन्होंने तो नबी पाक को भी भेजा है, तो आप ये सीधे से सीखना है हम लोगों ने। देखें आपने ये कहा ना कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, मैं अब एक जुमला बोलने लगा हूँ, तारीखी जुमला है और सबको याद रहना चाहिए, ठीक है, खास तौर पे जो हमारी ऑडियंस है उसको। चले मान लेते हैं कुरान साइंस की किताब नहीं है, ठीक है, मानता हूं मैं कुरान साइंस की किताब नहीं है, मगर इसे साइंसी गलतियों की किताब भी नहीं होना चाहिए जो कि इसमें बेशुमार साइंसी गलतियां नहीं है जो आप बहुत है यार, बहुत है। मैं आपको सिंपल एक गलती बता देता हूँ, आप यार उसको ये तो गोल्डन आपने वर्ड कहे हैं गालिब भाई। हाँ गोल्डन ही है ना, ठहरे। मेन बात ये है कि यार कुरान ये कहता है कि पहाड़ जो है ना वो सूरज से पहले बन गए, ये 100% साइंसी तौर पे गलत है। कहाँ 5 अरब साल पुराना सूरज, ये बिल्कुल जहां पे आपका पूरा सीक्वेंस लिखा है कि पहले दिन ये बना, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, उधर लिखा हुआ कि पहाड़ सूरज से पहले बन गए थे। ये टोटली 100% साइंसी तौर पे गलत है। और ये जुमला हाँ रेफरेंस यार आप देखें जाके ना, अब आप खुद देख लें, मैं इस वक्त रेफरेंस आपसे, अब मैं आपसे आगे जाने के मूड में हूं, मगर जो मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल सही बात है, सूरह अंबिया में है, ये पूरा किस्सा सामने लिखा है। चले मैं देखूंगा, ठीक है, एक मिनट ठहरे। तो इसलिए ये याद रखें कि कुरान साइंस की किताब बेशक ना हो, इसे साइंसी गलतियों की किताब नहीं होना चाहिए जो कि ये है, ठीक है। तो इस बात पे हम खत्म करते हैं। सब्सटेंशियल सर आपने या बेटर रूट ने कोई और बात करनी है तो अभी कर लें, इजाजत ले रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया, घंटा हो गया इनके साथ। चूंकि अली खान रिसर्च करने वालों में से है, हम इन्हें सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 9, 10, 11 की तरफ भी पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। सूरह फुस्सिलत वो है जिसमें ये पहले 9-10 आयत में ये बताया जाता है कि जमीन बनी और जमीन में सारी चीजें डाली गई ताकि उसको जमीन को आगे बढ़ाने के लिए। फिर तवज्जो जो थी सुम्मस्तवा इला समा, यानी कि फिर तवज्जो जो है वो आसमान की तरफ की जो उस वक्त धुआं था, ठीक है। यानी जो ये है ना कि जो प्लाज्मा जो धुआं नुमा स्मोक लाइक, अगर आप मान भी लें इस बात को, तो वो है अर्ली यूनिवर्स में 380,000 जो इनिशियल ईयर्स है ना, उस वक्त क्या कहते हैं बात हो रही है। तो वो लेकिन इस 9 और 10 से ऑर्डर की मिस्टेक पता लगती है। वो बता रहा है कि जी पहले जमीन बनाई गई, उसके बाद बाकी हेवंस और आसमानी बॉडीज, हेवनली बॉडीज की तरफ तवज्जो की गई, वो उस वक्त अभी अनफॉर्म्ड धुएं में थी। तो ऑर्डर ही गलत है, यानी जमीन तो बहुत बाद में बनी है, 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बनी है, और उस बहुत सारी हेवनली बॉडीज हैं जो जमीन से पुरानी है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ही गलत है, तो सिरे से ही ऑर्डर गलत है। तो आप सूरह फुस्सिलत की आयत 9, 10, 11 की तरफ भी तवज्जो दे, कई और आयात है, कई और आयात। मैं सिर्फ एक लास्ट में बात कहूंगा, फिर उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। सुन रहे हैं मेरी बात? जी सुन रहे हैं, आप बोलते जाया करें यार। चलें अब आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, हम आपको 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे रहे हैं और उसके बाद हम आगे जा रहे हैं। आपने जो बात अभी कर लें। सर मैं सिर्फ एक लास्ट बात कहूंगा कि अगर तो यानी मरने के बाद अगर तो यानी कुछ भी ना हो, खुदा वगैरह कोई चीज ना हो जैसे कि आप कह रहे हैं, तो फिर तो यानी हम सब एक ही तरह के, यानी हम भी खत्म आप भी खत्म, ठीक है, नो पॉइंट। लेकिन अगर खुदा हुआ तो फिर आप फंस जाएंगे, ठीक। हम हमारी तो फिर भी कोई ना कोई चलो तो जी बन ही जाएगी, आप तो फिर पक्के फंस जाएंगे ना। अगर मैं कहूं कि आप बड़ा शॉर्ट सा इसका आंसर दे दें तो हम आगे चलते हैं। देखिए जो शॉर्टेस्ट आंसर है ना, शॉर्टेस्ट आंसर बड़ा प्यारा सब्सटेंशियल सर देते होते हैं। शॉर्टेस्ट आंसर पास्कल्स वेजर का वो ये है कि इट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट, इट इज अ स्ट्रेटजी व्हिच इज इन्वोक्ड प्रिसाइजली इन द एब्सेंस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहा, कोई ना सबूत है ना आर्ग्यूमेंट है, तो एहतियाती तदबीर, एहतियातन व्हाट इफ, चूंकि आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसी वजह से आप इसको एज अ स्ट्रेटजी वो कर रहे हैं कि चाहे आप सच्चे दिल से माने या ना माने, स्टार्ट एक्टिंग एज इफ यू बिलीव इन गॉड। Pascal's wager is an invitation to act on certain injunctions dishonestly, ठीक है। चाहे आप माने या ना माने, स्टार्ट एक्टिंग एज इफ यू बिलीव इन गॉड, कि अच्छा फिर तो फंस जाएंगे। ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है सर। ये बैगिंग है, ये पास्कल्स वेजर नहीं है, पास्कल्स बैगिंग है, क्योंकि ये बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी को ही ये दरअसल बैगिंग है। ये जब सबूत नहीं होता तो यही बातें होती हैं कि इस बात को अगर ऐसा निकल आया तो बताएं फिर क्या होगा। मैं आज जो ना ये बैकफायर हो रहा है सारा।
जब जब चलिए ये तो ठीक है, बैक ओके फायर जी। भी हो रहा है, बैक फायर भी हो रहा है और बैग फायर भी हो रहा है। तो नेक्स्ट वीक आप जरूर आना। इस बात को याद रखें कि पास्कल्स एक वेजर इज अ नॉन आर्गुमेंट, और जो बंदा पास्कल्स वेजर इन्वोक करता है बिलीवर, वो इस चीज की एडमिशन कर रहा होता है कि आई हैव रन आउट ऑफ आर्गुमेंट्स, प्लीज फॉलो दिस एज अ स्ट्रेटजी। सर एथियज्म का जो कांसेप्ट है ना, एथियज्म का जो कांसेप्ट है वो नहीं, वो नेचुरल आखिरी है ही बात नहीं है, वो अभी नेचुरल है ही नहीं है। आपके साथ देखें, अगर आपने एथिस्टिक पोजीशन को समझना है ना, जब भी हमारी नहीं मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जो नहीं एथियस्ट का कांसेप्ट है ना वो नेचुरल है ही नहीं। आप किसी आप अफ्रीका के जंगलों में भी किसी बच्चे को उठा लेना तो वो किसी ना किसी गॉड की इबादत कर रहे होंगे, ठीक है, वो यानी नेचुरल नहीं है, ओ भाई ये देखिए, अननेचुरल यानी आपका बिहेवियर है। इससे पहले कि आपको ये पता नहीं था कि जमीन फ्लैट नहीं है और जमीन गोल है, आप अफ्रीका के जंगल में किसी से भी पूछते तो उसने आपको कहना था कि जमीन फ्लैट है। दिस इज नॉट एन आर्गुमेंट, आप समझते हैं इस बात को, ठीक है। एक ये यूनिवर्सल तो बात कुरान भी बोलता है अर्थ फ्लैट है। ये तो यूनिवर्सल बात थी। इट वाज वेरी नेचुरल टू बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट, इट वाज वेरी एंड इट वाज वेरी अननेचुरल टू बिलीव कि अर्थ इज राउंड, ठीक है। देयर वाज अ टाइम, तो ये ठीक उसी तरह नेचुरल जैसे जमीन के गिर्द नेचुरल सूरज घूमता है, लेकिन आज हम जानते हैं सूरज जो है के गिर्द जमीन घूमती है। कुरान पॉइंट। भी यही कह रहा है कि देखिए सूरज जो है बीटी जमीन के गिर्द घूमता है। बीटी कुरान में कहाँ पे लिखा हुआ है? झूठ तो ना बोले। नहीं तो कुरान यही बोल रहा है ना ये कि बात नहीं हो रही। बात कहीं और मैं ले लंबी सकता खींच रहा था। मैं ये एक बड़े होनहार देखा करें बात कहाँ जा रही। हाँ। ये एक होनहार स्टूडेंट है, मैं इनको कुछ प्रिंसिपल्स अपनी अदना सी हैसियत में, मेरी भी कोई हैसियत नहीं किसी को सिखाने की, लेकिन इनके सामने अपनी अदना सी हैसियत में कुछ थिंकिंग प्रिंसिपल्स रख रहा हूं कि ये नेचुरल वर्सेस अननेचुरल की डाइकोटमी या बाइनरी क्रिएट करके यू आर नॉट पुटिंग फोर्थ एन आर्ग्यूमेंट, बिकॉज once upon a time it was quite natural to believe कि जमीन फ्लैट है, it was quite unnatural to believe कि जमीन राउंड है, मगर in the face of the evidence ऐसा अब नहीं बात की जाती। इसी तरीके से अगर आपने एथियस्टिक पोजीशन को समझना है, आप कह रहे हैं ना एथिज्म का कॉन्सेप्ट, वी विल बेसिकली आस्क यू देन कि आप एथिज्म के बारे में जानते क्या है, इंतहाई एहतराम से, इंतहाई ऐसा नहीं कि कोई आपको कॉर्नर करने के पर्सपेक्टिव से। अगर आप एथिज्म की थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ जो फाउंडेशंस हैं, फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एथिज्म, उसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं, जब भी गालिब की अंग्रेजी की स्ट्रीम स्टार्ट होती है फ्राइडे को सर, फ्राइडे को, इस फ्राइडे पक्का हो रहा है। हम इसको ये रिकरेंट थीम होगा, क्योंकि वेस्ट में भी एथियस्टिक फाउंडेशंस जो है वो क्लियर नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो वो वेस्टर्न ऑडियंस के लिए भी है और हमारे जो दोस्त हैं जो कि अंग्रेजी समझते हैं उनके लिए भी है। तो आप उसको जरूर देखें, ज्वाइन करें उस स्ट्रीम को या उसकी रिकॉर्डिंग देखें, तो उसमें हम एथिज्म के जो कॉन्सेप्ट्स है ना कि एथिस्टिक पोजीशन क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये अभी तो बहुत सारी बातें आप किसी जो कहने को लोग एथियस्ट होंगे उनसे पूछेंगे ना कि इसकी फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस क्या है एथिज्म की, तो वो जो बंदा क्लेम कर रहा है एथियस्ट बेचारा वो भी नहीं बता सकेगा। चलिए तो ठीक है, ओके फिर अभी चलें ठीक है अली खान, बहुत शुक्रिया, आप जरूर आइएगा दोबारा और इन चीजों को पढ़ें, आप हमारे भाई हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, सीखना होता है सबने, ठीक है। और हमारा मकसद आपको कोई भी किसी लेवल पे ये कहना नहीं था कि आप इंटेलिजेंट नहीं है या कोई ऐसी बात है, हम जानते हैं आप इंटेलिजेंट और आप चीजें समझेंगे, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बाय बाय। इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मी अ कॉफी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।